Hello, Acho. Let's set the given question. The question says, state the theorem of parallel access. So, to understand this question, we need to understand about the concept of parallel access theorem. Parallel access theorem. बेसिकली सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम क्यों ज़रूरत पड़ी और ये एग्जैक्टली व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. सो लेट्स सपोज के हमारे पास एक बॉडी है. लेट्स से हमारे पास एक स्फीयर है. ठीक है. स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सेस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नो 2/5 mr². बट व्हाट अबाउट अगर हमें इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस विच इज पैरेलल टू द ICOM बेसिकली, या फिर ICM इसे कह देते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास एक्सेस. अगर हम इस एक्सेस के अबाउट ढूंढना चाहें, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से I. सो I can be given by IC plus, if let's say m is the mass of this sphere, so m into distance between the two, perpendicular distance between the two parallel axes is let's say a. So ये हो जाएगा ma². So this is what the expression for parallel axis theorem is. And यहाँ पे हम significance देख सकते हैं, हम किसी भी axis के about जो कि parallel है, अगर known axis को, तो we can calculate the moment of inertia. ठीक है. So अब अगर हम इसका हमें statement देना है और we need to derive this expression. So first we will write the statement of it and then we will derive. So it states that the moment of inertia, that the moment of inertia of a body about any axis, of a body about any axis is equals to the sum of its moment of inertia, the sum of its moment of inertia, sum of its moment of inertia about a parallel axis, about a parallel axis passing through its center of mass, passing through its center of mass, and the product of its mass and the square of the perpendicular distance, and the square of the perpendicular distance between two parallel axes. So this is what the statement we need to keep in mind. जो कि हमने expression लिखा उसी के बेस पे we have written this expression statement. So यहाँ पे अगर हम इसका derivation part समझने की कोशिश करें, so let's suppose we have a body जिसके axis of जो axis of rotation जो center of mass से pass हो रही है, let's say it is ICOM. ठीक है. And if we wish to find the moment of inertia about this axis, let's say I, the distance between the two axes is let's say A. So what we will do is, since it is a continuous body, हम क्या करेंगे, एक dm mass consider करेंगे at a distance r from the ICOM. ठीक है ना. ICOM वाली एक्सेस से हम r डिस्टेंस पे एक dm mass कंसिडर कर रहे हैं. अब यहाँ पे we can see के DICOM can be written as, for a continuous body, small moment of inertia, small mass के लिए हम लिख सकते हैं dm into r². and from here we can see, अगर हम second axis के about लिखना चाहें, so di can be written as dm into r plus a का the whole square, right? So further we can say, इसको अगर हम थोड़ा सा expand कर दें, so r² plus
2RA plus a square, a plus b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और जस्ट वी विल इंटीग्रेट बोथ द साइड. सो ये हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिल जाएगा. एंड हियर इट विल बी इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dm इंटू 2RA प्लस इंटीग्रेशन dm a स्क्वायर. सो अब यहाँ से अगर हम फर्दर एनालाइज करें चीज़ों को, सो इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DICOM. ठीक है. सो दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू दैट इज वी कैन से देयरफॉर I कैन बी रिटन एज ICOM प्लस, अगर हम इस वैल्यू की बात करें सो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ DM, हर पॉइंट मास को हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे सो टोटल मास वी विल बी गेटिंग दैट इज M. अब ये जो बीच वाला टर्म है इट इज 0. वाई? बिकॉज यहाँ पे वी कैन सी के 2A तो कांस्टेंट है, बाहर लिया जा सकता है. इसको पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से 0 है ये. 2A बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा DM R. ठीक है, DM R बच रहा है. अब यहाँ पे इफ वी सी के इफ वी मल्टीप्लाई कैपिटल M एंड स्मॉल कैपिटल M इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी कैन से I विल बी इक्वल्स टू ICOM. ये तो एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है यहाँ तक जो हमें चाहिए था. बस इसे हम देख रहे हैं कि ये 0 कैसे हो रहा है. तो DM R कैपिटल M मल्टीप्लाई किया हमने डिवाइडेड बाय कैपिटल M. तो अगर हम ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन DM R अपॉन कैपिटल M इज द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास तो क्या वी कैन सी जो एक्सिस है वो खुद सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. सो द डिस्टेंस विल बी 0, राइट. सो R विल बी 0 इन दिस केस. सो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड फाइनली वी कैन से देयरफॉर I will be equals to ICOM plus MA square. So this is the result we have written over here. So this is how we can derive it. I hope you understood the solution. All the best.